Hi everyone, welcome to the session. So in this session, I want to discuss about Azure Storage Redundancy, which is the high availability topic for the Azure storage accounts. So we are continuing our storage account topics and let's continue with this one. See, uh, in my previous video regarding the high availability options in virtual machines, I have already explained what is high availability, what kind of high availability options we have available for the Azure virtual machines. So in case you don't know what is high availability, you can refer that video from the description box and you can also see the link in the video as well. Now, let's talk about what kind of high availability is offered by Microsoft Azure in terms of storage accounts. So, let's talk about this. See, first of all, we all know that high availability is very important. Redundancy is very important. Why it is important? Because, मान लो, for example, I have one storage account in the UK South region. मैंने Azure में एक storage account बनाया in the UK South region, and that storage account contains very critical data for the business. उसमें बहुत ही critical data है and I cannot afford any kind of downtime. Maybe the storage which is in the UK South, जो हमारा storage account है UK South में, maybe there can be two situations. There can be some planned activities which has to be carried out by the Microsoft. Means in the back end maybe they need to update this storage account. हो सकता है उनको इस storage account को update करना हो. Update in the sense जिस हार्डवेयर प्लेटफॉर्म पे ये स्टोरेज चल रहा है, मे बी दे नीड टू अपडेट दैट हार्डवेयर प्लेटफॉर्म, सो दैट इज वन ऑफ द प्लान्ड इवेंट. Maybe they need to perform the patching, maybe they need to carry out some other activities. That is possible. So that is the planned event, and during the planned event the storage account will not be available. It will be unaccessible, right? जब माइक्रोसॉफ्ट कोई प्लान्ड एक्टिविटी करेगा तो ये स्टोरेज अकाउंट उस टाइम पे अवेलेबल नहीं होगा. जस्ट लाइक वी डिस्कस्ड अबाउट द availability sets, if you remember, in the virtual machines. So you can refer that video in case if it has got out from your mind, then you can refer that video. So अगर माइक्रोसॉफ्ट कोई प्लान्ड एक्टिविटी कर रहा है लाइक पैचिंग करना या कोई अपडेशन करना बैकएंड में, तो उस टाइम पे ये स्टोरेज अवेलेबल नहीं होगा जब तक ये एक्टिविटी चलेगी. देयर विल बी डाउन टाइम. उस केस में इफ आई वांट टू एक्सेस माय डेटा, दैट इज वेरी वेरी लाइक क्रिटिकल सिनेरियो, क्योंकि डेटा एक्सेस होगा ही नहीं. एंड इफ द स्टोरेज इज डाउन लेट्स से फॉर 15 to 20 minutes and I need the data very badly, there can be some significant business impacts as well. This is one situation. Plant situations are somehow in our control. प्लांट सिचुएशन तो चलो हमारे कंट्रोल में भी है कि वी विल हैव द नोटिफिकेशन इन एडवांस, तो हम अपने कस्टमर्स को बता सकते हैं दैट देयर इज सम प्लांट एक्टिविटी गोइंग ऑन एट द माइक्रोसॉफ्ट साइट. सो ड्यूरिंग दिस टाइमिंग द डेटा विल नॉट बी अवेलेबल, it will be inaccessible, so plan your work accordingly. So that situation is in our control somehow. But when it comes to some unplanned events, मतलब कोई outage, there can be some scenario which is not in our control. Sorry, my writing is not good when I write via the mouse. I don't use the pen generally. I have it, but I don't like to use it. See, so during the unplanned scenario, unplanned means there can be some outage. Unplanned situations are not in our control. Means there is some outage. जिस डेटा सेंटर में ये स्टोरेज अकाउंट है एट द माइक्रोसॉफ्ट साइट, देयर कैन बी सम आउटेज. मे बी सम रैक फेलियर हो गया जिस रैक पे ये स्टोरेज अकाउंट था. मे बी हार्डवेयर फेलियर हो गया जिस हार्डवेयर पे ये स्टोरेज चल रहा है इन द माइक्रोसॉफ्ट डेटा सेंटर, दैट इज फेल्ड. देयर इज सम पावर आउटेज हैपेंड. There is some fire situation in the data center, some short circuit situation in the data center, maybe some failures, the complete loss of the data center, कुछ भी हो सकता है. That situation is not in our control. And in those scenarios, again my storage data will not be available. उस केस में भी मेरे स्टोरेज का डेटा अवेलेबल नहीं होगा, and that is a business impact. If it is critical for us, मुझे वो डेटा चाहिए, and if it is not accessible, that is a business impact. So during these two scenarios, we need to plan the high availability. हमें हाई अवेलेबिलिटी प्लान करना जरूरी है. एंड इन द एज्योर we studied about the virtual machines high availability. We discussed about availability sets.
availability zones, virtual machine scale sets. There will be a more topic in the future which is called ASR, Azure Site Recovery. So these are some high availability options for the virtual machines. Regarding the network, we also discussed about high availability during the site to site and point to site tunneling, which was active active and active passive of the VPN gateways, if you remember. And for the Azure storage account today, Azure के जो storage account है जिसमें हमारा data रखा हुआ है, for that we have some high availability options available. So we have the LRS option as part of the high availability. Azure storage account में हमें एक option मिलता है LRS. We call it locally redundant storage. We have second high availability option called ZRS or GRS, zone redundant storage. Third high availability option which we have is GRS, geo redundant storage. And the fourth one is GZRS, geo zone redundant storage. इसके अलावा ये जो आपके ये दो ऑप्शंस है GRS एंड GZRS, इसमें RA भी अवेलेबल है, रीड एक्सेस जियो रिडंडेंट स्टोरेज and read access geo zone redundant storage. So that is also available. We will discuss all of them one by one. हम इन सबको आज ही डिस्कस करेंगे and we will see the practical of it as well. So high availability and redundancies के लिए in Azure we have these options available. This is very important, very important, because when you will appear for the interview, the interviewer may ask you that how your company plans for the high availability of your storage data in case something bad happens. This can be the question, because nowadays there are no general questions during the interviews. They will not ask you a direct question, okay, tell me what are the Azure storage redundancy options available. No. There can be some situation where they will ask you about this. Maybe if you are applying as a very much fresher for the L1 roles, then there can be some direct questions. But again, it depends how much salary they are offering. If they have a good budget, they are offering very great salary, good salary. In that condition, the interview is not going to be very easy. Trust me. So they will ask you the scenario based question, and it can be like, okay, tell me how your company plans for the high availability of the data which is there on the Azure storage account if something bad happens. So you have to be ready with all the explanations. You have to be ready with the deep dives. So let's discuss about the storage, high availability or redundancy options one by one. So in short, high availability help करता है हमें in case there is some planned or unplanned events. कोई भी planned events Microsoft Data Center में हो रहा है, या फिर कोई unplanned situation आती है, like कोई भी outage आता है या कोई भी failure आता है, तो उस केस में मेरा जो डेटा Azure स्टोरेज अकाउंट के अंदर है, that should be accessible to me. चाहे वो किसी भी तरीके से हो, मेरा डेटा मेरे को एक्सेसिबल होना चाहिए. आई कैन नॉट अफोर्ड द डाउन टाइम. दैट इज द प्लान फॉर द हाई अवेलेबिलिटी. रिडंडेंसी इज अगेन कि अगर कुछ डाउन हुआ, देन हाउ माई डेटा विल बी एक्सेसिबल, हाउ द एज्योर प्लान्स फॉर द हाई अवेलेबिलिटी. अगर मेरा एक स्टोरेज अकाउंट डाउन हो गया तो उसका डेटा दूसरे स्टोरेज पे कैसे मूव किया जाएगा, या उसका डेटा की कॉपी किस तरीके से अवेलेबल होगी मुझे, सो दैट आई कैन एक्सेस इट. दैट इज द पार्ट ऑफ योर रिडंडेंसी. रिडंडेंट कि अगर कुछ डाउन होता है, देन हाउ द सेकेंडरी थिंग वर्क्स, दूसरी चीज कैसे काम कर पाएगी. व्हाट इज प्लान बी, हाउ द प्लान बी, हाउ द बैकअप्स आर गोइंग टू गेट एग्जीक्यूटेड. बैकअप प्लान्स, बाय बैकअप आई मीन्स बैकअप प्लान्स. सो सी, व्हेन आई टॉक अबाउट एज्योर स्टोरेज, जब मैं एज्योर स्टोरेज की रिडंडेंसी की बात करता हूं तो ये दो फैक्टर्स में डिवाइडेड है. एक प्राइमरी रीजन एंड रिडंडेंसी इन द सेकेंडरी रीजन. अब ये है क्या? सो प्राइमरी रीजन इन द सेंस, आई विल टेक वन एग्जांपल. मान लो आपका एक स्टोरेज अकाउंट है एज्योर में, आपने एक स्टोरेज अकाउंट बनाया एंड दैट स्टोरेज अकाउंट इज इन यूके साउथ रीजन. दिस इज योर प्राइमरी रीजन, राइट? ये आपका रीजन है, इसी के अंदर आपका स्टोरेज है, और इसी के अंदर फिर आपके कंटेनर्स यानी कि ब्लॉब्स, टेबल्स, क्यूज, फाइल्स, ये सब चीजें बनी हुई है, और आपका डेटा है. यू हैव योर डेटा हियर. नाउ suppose your storage is in the UK South and you wants to plan for the high availability in the same region. आप चाहते हो कि UK South में मेरा डेटा है, उसी में रहना चाहिए. I don't want to go with some another copies into another region.
तो यूके साउथ में जो पहला ऑप्शन है, मतलब प्राइमरी रीजन में जो पहला ऑप्शन है, दैट इज एलआरएस। इफ यू चूज द LRS और लोकली रिडेंडेंट स्टोरेज, तो इसमें होगा क्या? आई विल रेफर द ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। अगर आपने LRS चूज किया, सो बाय डिफॉल्ट, अगर आपका रिडंडेंसी या फेल ओवर ऑप्शन या आप कह लो हाई अवेलेबिलिटी ऑप्शन LRS है, अगर आपके स्टोरेज पे LRS चूजन है, तो बाय डिफॉल्ट आपका जो भी डेटा स्टोरेज में है उसकी 3 कॉपीज एज्योर करता है। एज्योर विल क्रिएट 3 कॉपीज ऑफ योर अंडरलाइंग डेटा इनसाइड द स्टोरेज अकाउंट। वो 3 कॉपीज कहाँ होती है? वो 3 कॉपीज आपके सेम फिजिकल डेटा सेंटर में, यानी अगर आपने यूके साउथ में स्टोरेज बनाया है, तो यूके साउथ के जिस डेटा सेंटर में यूके साउथ के जिस डेटा सेंटर में आपने स्टोरेज बनाया है, इन द डेटा सेंटर वेयर यू हैड क्रिएटेड योर स्टोरेज अकाउंट, इन द सेम डेटा सेंटर इनटू डिफरेंट डिफरेंट रैक्स, उसी सेम डेटा सेंटर के अलग अलग रैक्स में, जैसे अवेलेबिलिटी सेट्स कॉन्सेप्ट था, सेम डेटा सेंटर के अलग अलग रैक्स में आपके डेटा की, यानी आपके स्टोरेज डेटा की 3 कॉपीज क्रिएट करता है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। यानी एक स्टोरेज यहाँ इस रैक में चल रहा है, एक स्टोरेज आपका इस रैक में चल रहा है, एक स्टोरेज आपका इस रैक में चल रहा है। So 3 copies will be created if you will choose the LRS. It will work in the same data center of the same region. इसका फायदा क्या है? अगर किसी भी रीजन से ये रैक फेल हुआ, मे बी देर इज सम पावर सप्लाई इशू, मे बी देर इज सम हार्डवेयर फेलियर, मे बी देर इज सम रैक फेलियर, शॉर्ट सर्किट कुछ भी हुआ, और ये रैक अगर काम नहीं करता है, स्टिल यू हैव 2 कॉपीज अवेलेबल। आपके स्टोरेज की 2 कॉपी तभी भी अवेलेबल है। सो यूजर्स, द कस्टमर्स विल नॉट फेस द डाउन टाइम सिचुएशन। दिस इज हाउ इट विल मेंटेन द हाई अवेलेबिलिटी। और अगर आप इसको रीड करते हो, सो हियर यू विल सी कि LRS सबसे सस्ता ऑप्शन है हाई अवेलेबिलिटी का एजोर स्टोरेज के लिए। इट इज वेरी चीप ऑप्शन, लीस्ट एक्सपेंसिव, काफी इकोनॉमिकल है, और ये आपको 99.11 टाइम्स 9 ड्यूरेबिलिटी देता है पूरे साल में, विद इन ए ईयर। मतलब बहुत रेयर चांस है दैट योर स्टोरेज विल बी डाउन, बहुत रेयर। 99.11 times 9 is a big SLA by the Microsoft. So it is low cost, offers very good durability compared to other options, and it will help you to protect your data against the drive failure, server failure, or rack level failure. So this is how the LRS works. Remember. तो ऐसे ही आपने LRS स्टोरेज के रिडेंडेंसी को चूज किया, तो 3 कॉपी वो अलग अलग रैक्स में बनाएगा विद इन द सेम डेटा सेंटर। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर अगर मेरा पूरा डेटा सेंटर ही इंपैक्ट हो गया, LRS क्या कर रहा है? LRS आपके स्टोरेज को 3 कॉपी में डिवाइड कर रहा है विद इन 3 डिफरेंट रैक्स। 3 अलग अलग रैक में 3 अलग अलग स्टोरेज कॉपीज चल रही है। तो अगर एक रैक डाउन होता है या किसी तरीके से हार्डवेयर फेलियर होता है, तो मेरे 2 रैक्स वर्किंग है और मेरे स्टोरेज अवेलेबल है, राइट? दैट इज LRS ऑप्शन। बट ये जो पूरा पूरा डेटा सेंटर है इन द यूके साउथ, फॉर एग्जाम्पल, मैंने यूके साउथ का एग्जाम्पल लिया, यूके साउथ में जो पूरा पूरा डेटा सेंटर है, इन डेटा सेंटर के अंदर जितने भी रैक्स चल रहे हैं, या ये पूरा जो डेटा सेंटर है, इफ इट इज इम्पैक्टेड, मे बी यहाँ पे कोई फायर सिचुएशन होती है, आग लगती है डेटा सेंटर में, मे बी देर इज सम फ्लड सिचुएशन, मे बी देर इज सम कंप्लीट फेलियर, द लॉस ऑफ डेटा सेंटर। सो इन दैट कंडीशन ये पूरे के पूरा रैक, पूरा का पूरा कॉपी, जो 3 कॉपीज है, पूरा डेटा सेंटर, दैट विल गेट इम्पैक्टेड। पूरा डेटा सेंटर ही बंद हो जाएगा, इम्पैक्ट हो जाएगा। तब क्या होगा? then what will happen? Because LRS will only protect your storage within the same data center, but पूरा डेटा सेंटर ही अगर इम्पैक्ट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने कहीं पे लिख भी रखा है, सी, इफ एनी डिजास्टर सच एज फायर और फ्लडिंग अकर्स विद इन द डेटा सेंटर, तब क्या होगा? ऑल replicas of the storage account using the LRS might be lost or unrecoverable। तो लॉस है, बिजनेस इंपैक्ट है। तो इस केस में क्या होगा? सो माइक्रोसॉफ्ट रिकमेंड्स कि अगर अगर आपको इस सिचुएशन से बचना है, इफ योर डेटा इज वेरी क्रिटिकल दैट यू कैन नॉट अफोर्ड एनी डेटा सेंटर लेवल फेलियर, अगर आपका डेटा बहुत क्रिटिकल है कि आप डेटा सेंटर लेवल फेलियर अफोर्ड नहीं कर सकते हो, देन माइक्रोसॉफ्ट सेज दैट ओके, यू मे चूज द सेकंड ऑप्शन विच इज कॉल्ड ZRS।
और ZRS, ZRS कह लो या ZRS कह लो, डिपेंड्स अपॉन द रीजनल प्रोनाउंसिएशंस. जोन रिडंडेंट स्टोरेज. So this is also the part of redundancy in the primary region. तो ZRS क्या करता है? ZRS will create 3 copies of your storage account but into different data centers. जैसे अगर मैंने स्टोरेज अकाउंट बनाया यूके साउथ में, so we all know that in most of the regions of Microsoft, वहां पे उनके 3 अवेलेबिलिटी जोन्स है. जैसे हमने उसमें भी पढ़ा था वर्चुअल मशीन टॉपिक्स में, दैट देर आर अवेलेबिलिटी जोन्स. अवेलेबिलिटी जोन मीन्स सेपरेट डेटा सेंटर्स. सो यूके साउथ में फॉर एग्जांपल दे हैव 3 सेपरेट डेटा सेंटर्स, 3 फिजिकल डेटा सेंटर्स, एंड दे आर जनरली लाइक इन द डिस्टेंट, सम माइल्स के डिस्टेंस पे, अराउंड 100 माइल्स के डिस्टेंस में ये एक दूसरे से होते हैं. तो एक डेटा सेंटर यूके साउथ का किसी लोकेशन पे है, दूसरा किसी और लोकेशन पे, एंड थर्ड वन विल बी इनटू अनदर लोकेशन. यू कैन रीड अबाउट इट इन द ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन. वहां पे पूरा प्लेस, पूरा रीजन, पूरी सिटी, सब कुछ दिखाई देता है. यू कैन रीड अबाउट इट. सो हमारे पास सपोज यूके साउथ में 3 डेटा सेंटर है इन द सेम रीजन. यूके साउथ में 3 डेटा सेंटर है अलग अलग लोकेशन पे. अगर आपने ZRS चूज किया एज ए रिडंडेंसी ऑप्शन, एज ए हाई अवेलेबिलिटी ऑप्शन, वो क्या करेगा? वो बाय डिफॉल्ट आपका जो भी स्टोरेज अकाउंट है उसमें जितना भी डेटा है उसकी एक कॉपी पहले डेटा सेंटर में रखेगा, यानी पहले फिजिकल डेटा सेंटर में. उसकी सेकंड कॉपी दूसरे फिजिकल डेटा सेंटर में रखेगा, एंड द थर्ड कॉपी विल बी देयर इन द थर्ड फिजिकल डेटा सेंटर. इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि अगर मेरा रीजन यूके साउथ है स्टोरेज का, और अगर यूके साउथ का एक डेटा सेंटर फेल होता है बिकॉज ऑफ सम सिचुएशन लाइक फायर, फ्लड या कोई फेलियर, एक डेटा सेंटर इंपैक्ट हो गया, ये बंद हो गया, स्टिल आई हैव 2 डेटा सेंटर्स एक्टिव, तो मेरा स्टोरेज अवेलेबल वहां से यूजर्स को हो जाएगा. तो दिस विल प्रोटेक्ट माई स्टोरेज फ्रॉम द डेटा सेंटर लेवल फेलियर विद इन द सेम रीजन. रीजन यूके साउथ ही होगा, बट यूके साउथ में 3 अलग अलग डेटा सेंटर्स में ये मेरे कॉपीज को डिवाइड करेगा. तो अगर एक डेटा सेंटर फेल होता है तो स्टिल आई हैव 2 कॉपीज अवेलेबल फ्रॉम द 2 अदर डेटा सेंटर. दिस इज हाउ द ZRS वर्क्स. तो इसका जो SLA है दैट इज 99.12 टाइम्स 9. उसका 11 टाइम्स 9 था, इसका 12 टाइम्स 9 है. इट इज सम हाउ एक्सपेंसिव देन द LRS. और माइक्रोसॉफ्ट का सबसे रिकमेंडेड सॉल्यूशन यही है. इफ यू हैव द एप्लीकेशन which requires very high availability and least latency, so Microsoft खुद कहता है कि आप ZRS में जाओ. You can read this document. So this is one of the good option, but again there is a limitation. ये तीनों ही डेटा सेंटर यूके साउथ में है. These 3 availability zones are in the same region. ईस्ट, यूएस, यूके साउथ, जो भी आपका रीजन है उसमें ये तीनों डेटा सेंटर है. दे आर इन डिस्टेंट लोकेशन बट है एक ही रीजन में, है एक ही रीजन में. अगर पूरा रीजनल लेवल इंपैक्ट आता है, रीजन्स कैन ऑल्सो बी इम्पैक्टेड इन द क्लाउड. पूरा पूरा रीजन डाउन हो सकता है. देयर कैन बी सम लाइन इश्यूज, देयर कैन बी सम वॉर सिचुएशंस, कुछ भी. सो इफ देयर इज अ रीजनल लेवल आउटेज, अगर पूरा रीजन डाउन हुआ तो ये तीनों के तीनों डेटा सेंटर्स इंपैक्ट होंगे. देन माय डेटा विल अगेन नॉट बी अवेलेबल. तब क्या होगा? देन वी कैन प्लान फॉर अनदर हाई अवेलेबिलिटी. क्योंकि पूरा पूरा रीजन बंद हो गया अगर, देन आई कैन प्लान फॉर अनदर हाई अवेलेबिलिटी. अगर मेरा डेटा इससे भी ज्यादा क्रिटिकल है देन आई कैन प्लान फॉर अनदर हाई अवेलेबिलिटी. लेकिन अगेन एक चीज का ध्यान रखना, कंपनीज हैव सम कंप्लायंस रिस्ट्रिक्शन एज वेल. ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी रिडंडेंसी ऑप्शन चूज कर लूंगा. सम कंपनीज हैव द रिस्ट्रिक्शन कि वो अपना डेटा किसी दूसरे रीजन में कॉपी नहीं कर सकते. मतलब अगर उनका बिजनेस रीजन ही यूके साउथ है देन दे हैव टू स्टिक विद द यूके साउथ. और यूके साउथ में मैक्सिमम, मतलब किसी भी रीजन में मैक्सिमम हमारा हाई अवेलेबिलिटी स्टोरेज का कहाँ तक है? ZRS तक, LRS एंड ZRS. तो ये दो ही उसको चूज करने पड़ेंगे उस केस में. अगर उसके रीजन रिस्ट्रिक्शंस है, उसके बिजनेस में अगर कंप्लायंस रिस्ट्रिक्शंस है कि यही रीजन चूज करना है आपको, इसके ऊपर हम कॉपी नहीं करने देंगे, देन दे हैव टू स्टिक विद दिस LRS एंड ZRS. देयर इज नो आर्ग्यूमेंट देन. तो बिजनेस is again one of the mandatory thing. We have to follow their rules and regulations accordingly. तो ऐसा नहीं है कि हम अपनी मर्जी से, आर्किटेक्ट प्लान्स these things out कि किस टाइम पे क्या लेना है डिपेंडिंग अपॉन द बिजनेस रिक्वायरमेंट. अदरवाइज वी हैव अ lot of solutions to offer, but
इट शुड बी एट पार विद द बिजनेस। आपके पास बहुत कुछ है बताने को, बट सामने वाले के काम का है कि नहीं है, अगेन इट डिपेंड्स। इट इज सेम लाइक योर इंटरव्यू। व्हेन यू गो फॉर द इंटरव्यू, someone ask you any question, you give the answer. If you know very well answer, but if your answer is not as per the requirement of that interviewer, you will be rejected. For example, you have 10 years of work experience, you have worked on multiple technologies, doesn't matter. If the company is looking for one or two technology, if it is mentioned in their JD and you don't have experience about that, company is not going to hire you. Company does not care that you know 10 other technologies. Company cares that if we need these two technology and if you don't know about it, we don't know, we will not hire you. For example, you are very specialist in AWS, but the company where you are applying for, they are using the Azure cloud. And if you will like brag your experience that I have a specialist experience of 10 plus years in AWS cloud management, it is of no use for them. उनके किसी काम का नहीं है, because they are looking for the specialist in Azure cloud or GCP cloud, whatever. तो वही ऑप्शन है. सो इफ देर इज ए रीजनल लेवल फेलियर, अगर पूरा पूरा रीजन डाउन होता है जहां पे आपका स्टोरेज अवेलेबल है, इफ यू हैव चूजन द ZRS ऑप्शन और पूरा पूरा रीजन डाउन हो गया, तो तीनों ही डेटा सेंटर इम्पैक्ट होंगे एंड माई स्टोरेज डेटा विल नॉट बी एक्सेसिबल अंटिल इट इज फिक्स्ड. जब तक ये फिक्स नहीं होता तब तक अवेलेबल नहीं होगा. तो उस केस में क्या होगा, वी कैन चूज अनदर हाई अवेलेबिलिटी ऑप्शन विच इज सेकेंडरी रीजन हाई अवेलेबिलिटी, कि मैं अपने डेटा को किसी दूसरे रीजन में कॉपी करवा सकता हूं. अभी तक तो मैं एक ही रीजन में रख रहा था, LRS में भी एक ही रीजन में काम कर रहा था, ZRS भी एक ही रीजन में काम करता है, मीन्स इट इज इन द सेम प्राइमरी रीजन, जो भी मैं रीजन चूज करूंगा. बट अगर मुझे लगता है यार रीजन फेल हो सकते हैं, जो हो भी जाते हैं, रीजन फेल हो सकते हैं, रीजन कैन गेट इम्पैक्टेड, तो क्या होगा. So we can replicate our data to the secondary region as well. हम अपने डेटा की कॉपीज को किसी दूसरे रीजन में भी रख सकते हैं. So for another regions we have the option called GRS and GZRS. GRS which is geo redundant storage and GZRS which is geo zone redundant storage. हमारे पास ये दो ऑप्शंस भी अवेलेबल है. ये कैसे काम करते हैं, तो लेट्स टॉक अबाउट द GRS. सी, अगर आपने GRS चूज किया तो जीआरएस में क्या होगा. फॉर एग्जाम्पल आपका स्टोरेज अकाउंट है यूके साउथ में, आपने एक स्टोरेज अकाउंट बनाया इन द यूके साउथ रीजन, किसी भी रीजन में बनाया, आपने एक स्टोरेज अकाउंट बनाया इन द यूके साउथ रीजन और आपने ऑप्शन चूज कर लिया जीआरएस. अगर आपने जीआरएस चूज किया तो जीआरएस क्या करेगा, जियो रिडंडेंट स्टोरेज क्या करेगा, आपके स्टोरेज की 3 कॉपीज करेगा, आपके स्टोरेज की 3 कॉपी बनाएगा इन द सेम डेटा सेंटर ऑफ द प्राइमरी रीजन. मतलब यूके साउथ का जो आपका डेटा सेंटर है, यूके साउथ का जो आपका डेटा सेंटर है उसमें आपके डेटा की 3 कॉपीज बनाएगा इनटू 3 डिफरेंट रैक्स, रैक नंबर 1, रैक नंबर 2, रैक नंबर 3. जो कि क्या कॉन्सेप्ट है, LRS का. LRS यही है ना, मतलब यूके साउथ अगर आपका रीजन है स्टोरेज का, तो उस यूके साउथ के डेटा सेंटर में स्टोरेज की 3 कॉपीज बनाएगा इनटू 3 डिफरेंट रैक्स विच इज LRS, मतलब LRS कर देगा. फिर साथ ही साथ क्योंकि आपने GRS चूज किया था, तो 3 कॉपी तो यहाँ पे है ही, प्लस उसका जो पेयर्ड रीजन होगा, जैसे यूके साउथ है तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यूके वेस्ट, तो उसके पेयर्ड रीजन में वो क्या करेगा, अगेन 3 कॉपी कर देगा. मतलब यूके साउथ के यूके वेस्ट में 3 कॉपी बना देगा. मतलब यूके वेस्ट के किसी डेटा सेंटर में आपके स्टोरेज की फिर से 3 कॉपी बनाएगा इनटू 3 डिफरेंट रैक्स, अगेन LRS. और ये पूरा जो कॉम्बिनेशन होगा इसको हम बोलते हैं GRS, जियो रिडंडेंट स्टोरेज. इन केस अगर पूरा पूरा यूके साउथ डाउन हो जाता है, अगर ये पूरा यूके साउथ डाउन होता है, स्टिल योर डेटा इज अवेलेबल इन द यूके वेस्ट रीजन, आपका डेटा तब भी यूके वेस्ट में अवेलेबल है. So users may be able to access the data and write the data into the UK West region. This is how the GRS works. तो इसके अगर मैं SLA की बात करूं, so here you can see it is 99.16 times 9 in a given year. एक साल में 99.16 times 9
SLA प्रोवाइड करता है। अराउंड आई थिंक 5-7 मिनट्स का डाउन टाइम ऐसा कुछ है। आई नीड टू चेक द डॉक्यूमेंट। तो ये होता है GRS। इस तरीके से GRS काम करता है। एक important concept which I want to discuss here is asynchronous and synchronous replication। बहुत बेसिक लेवल पे नहीं है, ध्यान रखना। AZ104 लेवल पे तो नहीं है, बट आई एम नॉट टारगेटिंग एनी सर्टिफिकेशन इन माई सीरीज। आई एम टारगेटिंग द स्पेशलाइजेशन। तो एक अच्छे लेवल पे, एक स्पेशलिस्ट लेवल पे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस। तो उसकी मैं स्पेलिंग की बात करूं तो आप लोग वैसे देख लेना। यहाँ इसमें लिखा भी हुआ है, देखो ये रहा, एसिंक्रोनसली। एंड इसी के आगे एस लगा दो, इस ए को हटा दो तो सिंक्रोनसली। ये दोनों ना रेप्लिकेशन के टाइप है, मतलब कॉपी के टाइप है। जब हम बात करते हैं, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से सुनना। दिस कैन बी सिनेरियो बेस्ड ट्रिगर अगेन इंटरव्यू में। अगर अच्छा पैसा लेना है देन यू हैव टू नो द डेप्थ। सी, अगर मैं LRS की बात करूं, LRS में जो रेप्लिकेशन होता है इट इज सिंक्रोनस रेप्लिकेशन। सिंक्रोनस, वो स्पेलिंग वगैरह आप देख लेना। सिंक्रोनस रेप्लिकेशन। सिंक्रोनस रेप्लिकेशन का मतलब है एट द सेम टाइम, रियल टाइम पे डेटा कॉपी होना। मतलब जो डेटा यहाँ पे अपलोड होगा एट द सेम टाइम वो यहाँ पे कॉपी होगा और यहाँ पे भी कॉपी होगा। दिस इज कॉल्ड सिंक्रोनस रेप्लिकेशन। सिंक्रोनस, अगर यहाँ से कोई डेटा डिलीट कर दिया मैंने इस स्टोरेज से, मतलब प्राइमरी जो मेरा सिंगल स्टोरेज है जो मुझे दिखता है, हमें तीन तीन कॉपियां दिखेगी नहीं, ध्यान रखना है एज्योर पोर्टल पे। ये बैकएंड में चल रहा है। ये आप सोच रहे हो तीन तीन स्टोरेज दिखेंगे, नहीं दिखते। हमें दिखेगा एक ही। अभी तक हमने जितना प्रैक्टिकल किया है स्टोरेज का, एक ही स्टोरेज दिखता है। दिखेगा एक, बट बैकएंड में दो कॉपी चल रही है हमेशा। तो अगर मैंने कोई डेटा डिलीट किया मेरे प्राइमरी स्टोरेज से, तो अपने आप ही ऑन द स्पॉट सिंक्रोनस, रियल टाइम में, वहां से इन दो कॉपीज से भी डिलीट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड सिंक्रोनस। तो LRS में सिंक्रोनस रेप्लिकेशन होता है, ध्यान रखना। ZRS में यानी ZRS में, इसमें भी सिंक्रोनस होता है। क्योंकि आपका रीजन तो सेम है ना, यूके साउथ ईस्ट यूएस, जो भी आपने रीजन लिया है, उसी रीजन में आपके तीन अलग अलग फिजिकल डेटा सेंटर्स है ना इन द ZRS। तो यहाँ पे जो डेटा मैं राइट करूंगा वो एट द सेम टाइम यहाँ पे भी राइट होगा, यहाँ पे भी राइट होगा। यहाँ से कोई डेटा मॉडिफाई या डिलीट होगा तो यहाँ से भी डिलीट, यहाँ से भी डिलीट। तो ये भी एसिंक्रोनस मोड में काम करता है, रियल टाइम। सॉरी, एसिंक्रोनस नहीं, सिंक्रोनस। सिंक्रोनस मोड में काम करता है ये भी। तो ये भी रियल टाइम है क्योंकि सेम रीजन है। बट व्हेन इट कम्स टू द सेकेंडरी रीजन, जब हम बात करते हैं डेटा की कॉपी करना सेकेंडरी रीजन में, तो ये कुछ अलग तरीके से काम करता है। अलग तरीका इन द सेंस, जो मैंने आपको GRS की थ्योरी समझाई कि GRS में जो भी आपका प्राइमरी रीजन है, फॉर एग्जांपल आपने यूके साउथ चूज किया, तो उसका जो भी पेयर्ड रीजन होगा, जैसे यूके वेस्ट, तो यूके साउथ में जो भी डेटा है उसकी कॉपी यूके वेस्ट में बनाई जाएगी, मतलब कॉपी करेगा एज्योर। जैसे कि वो यूके साउथ का जो भी आपका डेटा सेंटर है उसमें तीन स्टोरेज की कॉपी बना देगा इन द सेम डेटा सेंटर, बट उनके रैक्स अलग अलग होंगे। तो ये जो तीन कॉपी होगी, क्योंकि ये LRS कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है, तो ये तो होगा सिंक्रोनस, लाइव। यहाँ पे जो भी कॉपी हुआ, मतलब जो भी डेटा अपलोड हुआ, यहाँ पे तुरंत राइट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ भी मॉडिफाई हुआ, यहाँ पे तुरंत मॉडिफाई हो जाएगा। बट जब सेकेंडरी रीजन में रेप्लिकेशन होगा, जब सेकेंडरी रीजन में उस डेटा को कॉपी किया जाएगा, तो ये यहाँ पे एसिंक्रोनस होगा। एसिंक, एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस का मतलब है रियल टाइम पे नहीं होगा। ये तीन कॉपी तो रियल टाइम में काम कर रही है, बट यहाँ पे सेकेंडरी रीजन के टाइम पे रियल टाइम पे नहीं होगा। रियल टाइम इन द सेंस उसका एक टाइम फिक्स होगा। इट विल बी डिसाइडेड बाय द माइक्रोसॉफ्ट। एज्योर डिसाइड करेगा कि कब करना है, किस टाइम पे करना है। तो पहले तो ये डेटा यहाँ पे कॉपी कर लिया जाएगा, उसके बाद एक स्कैन, एक रेप्लिकेशन चलेगा, टाइम टू टाइम रेप्लिकेशन चलेगा इस रीजन से, यूके साउथ से यूके वेस्ट के बीच में। फॉर एग्जाम्पल समझ लो, फॉर जैसे उन्होंने बोला कि 30 मिनट्स के बाद हम रेप्लिकेट करेंगे, तो 30 मिनट्स के बाद जितना भी डेटा यहाँ पे है, तब उसकी कॉपी को यूके वेस्ट में भेजा जाएगा इनटू अनदर डेटा सेंटर। फिर वहां पे जो भी स्टोरेज में कॉपी बनेगी, फिर उसकी अगेन तीन कॉपी बनेगी इनटू थ्री डिफरेंट ट्रैक्स, वो LRS फॉलो करेगा। तो जैसे ही डेटा यहाँ पे कॉपी होगा, इसके अंदर, इस वाले यूके वेस्ट के डेटा सेंटर के अंदर वो सिंक्रोनस होगा। मतलब डेटा यहाँ कॉपी हुआ तो लाइव यहाँ पे और यहाँ पे कॉपी हो रहा होगा फिर उस टाइम पे। दिस इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक रीजन से दूसरे रीजन में कॉपी ऑन द स्पॉट नहीं होगा, लाइव नहीं होगा, यानी सिंक्रोनस नहीं होगा, एसिंक्रोनस होगा।
वो उसका एक टाइम डिसाइडेड होगा कि इतने इतने टाइम के बाद स्कैन्स चलेंगे, इतने इतने टाइम के बाद सीआरसी चेक चलेगा, वी कॉल इट साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, सीआरसी। तो इतने इतने टाइम्स के बाद सीआरसी चलेगा और एक रीजन का कंप्लीट डेटा उठा के दूसरे रीजन में रेप्लिकेट या कॉपी करवा दिया जाएगा। सेकेंडरी रीजन कॉन्सेप्ट में ये होता है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। So GRS is one of the option which we have. GRS एक ऑप्शन है, बट हियर द कॉन्सेप्ट इज, यहाँ पे भी एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है कि ये क्या कर रहा है, ये आपका डेटा एक रीजन से दूसरे रीजन में कॉपी अवेलेबल करवा रहा है। मतलब एक यूके साउथ में कॉपी अवेलेबल है, उसकी फिर यूके वेस्ट में भी कॉपी अवेलेबल है। कल को अगर यहाँ का रैक पे ये पूरा का पूरा डेटा सेंटर फेल हो जाता है, एलआरएस है ना, पूरा पूरा डेटा सेंटर फेल हो गया, तो मैं इसके ऊपर डिपेंड हूँ, मैं इस पे डिपेंड हूँ। अगर यहाँ भी फेलियर हो गया तो, यूके वेस्ट के डेटा सेंटर में भी फेलियर हो गया तो गया मेरा रेप्लिकेशन, कोई डेटा काम नहीं करेगा। देन व्हाट अनदर सॉल्यूशंस भी हैव, हर चीज का सॉल्यूशन दे रखा है। तो अनदर सॉल्यूशन इज यू कैन गो विद GZRS, जियो जोन रिडंडेंट स्टोरेज। आप ये ले लो। इसमें क्या होगा, देखो वही एक्सटेंडेड ZRS कॉन्सेप्ट। इसमें किस तरीके से काम होगा, इसमें ये होगा कि अगर आपने GZRS चूज किया है, जियो जोन रिडंडेंट स्टोरेज, यहाँ लिख देता हूँ। तो आपने अगर अपने स्टोरेज का रीजन चूज किया फॉर एग्जांपल ईस्ट यूएस, तो ईस्ट यूएस का जो आपका डेटा सेंटर है, अगर आपने GZRS ऑप्शन चूज किया है, तो ईस्ट यूएस का जो आपका डेटा सेंटर है उसमें 3 अवेलेबिलिटी जोन्स में आपके स्टोरेज की कॉपी की जाएगी। यानी ईस्ट यूएस के 3 डिफरेंट डेटा सेंटर्स में अवेलेबिलिटी जोन नंबर 1, अवेलेबिलिटी जोन नंबर 2, अवेलेबिलिटी जोन नंबर 3, इन तीनों में आपके स्टोरेज की 3 कॉपीज बनाई जाएगी। मतलब पहली कॉपी पहले डेटा सेंटर में, दूसरी कॉपी दूसरे डेटा सेंटर में, तीसरी कॉपी तीसरे डेटा सेंटर में, लाइक ZRS, समझ गए, लाइक ZRS। प्लस फिर आपका जो भी डेटा यहाँ पे अवेलेबल है इन द ईस्ट यूएस, उसकी उसके पेयर्ड रीजन में यानी वेस्ट यूएस में फिर से कॉपी बनाई जाएगी, उसकी कॉपी वेस्ट यूएस में भी की जाएगी, और वेस्ट यूएस का डेटा सेंटर जो भी होगा उसके सेम डेटा सेंटर में आपके स्टोरेज की 3 कॉपी की जाएगी इनटू 3 डिफरेंट रैक्स यानी एलआरएस में। सो दैट इन केस अगर पूरा पूरा रीजन डाउन हो जाता है, प्राइमरी रीजन अगर ईस्ट यूएस डाउन होता है, तीनों डेटा सेंटर भी डाउन होते हैं, स्टिल आई हैव अनदर कॉपी अवेलेबल, 3 कॉपी मेरी तब भी अवेलेबल है। दैट इज कॉल्ड GZRS। ये होता है GZRS। तो इसका भी SLA सेम है, GRS की तरह ही इसका SLA है, वेयर इट इज रिटन सी 99.16 टाइम्स 9 इन ए ईयर। तो ये सेम है, बट इट इज एक्सटेंडेड, इसमें हमें और ज्यादा ऑप्शंस मिल रहे हैं। और वही कॉन्सेप्ट है सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस। यहाँ पे ZRS कैपेबिलिटी में सिंक्रोनस यानी लाइव स्ट्रीमिंग चलेगी, लाइव कॉपी चलेगा, बट पूरा रीजन जब यहाँ से डेटा सेटअप कर लेगा तो उसके बाद एक सिंक टाइम चलेगा, एक टाइम होगा, उस टाइम के बाद ही वो डेटा उठा के यहाँ पे कॉपी किया जाएगा, विच इज एसिंक्रोनस। फिर यहाँ पे जब डेटा की एक कॉपी आ जाएगी तो वो लाइव 3 कॉपी बनाते चलेगा, विच इज अगेन सिंक्रोनस। तो ये तो हो गया आपका GZRS। बट इन GRS और GZRS में भी कमी है, GRS में एंड GZRS में भी लिमिटेशंस है। व्हाट इज दैट लिमिटेशन? लिमिटेशन ये है कि अगर मेरा प्राइमरी स्टोरेज यूके साउथ में है और मेरा पेयर्ड स्टोरेज यूके वेस्ट में है, और कल को अगर यूके साउथ का रीजन डाउन होता है यानी मेरी तीनों कॉपी इंपैक्ट होती है, तो मेरा स्टोरेज तो अवेलेबल होना चाहिए ना। और स्टोरेज कहाँ पे अवेलेबल है? यूके वेस्ट में। यूके वेस्ट में भी तो 3 कॉपी चल रही है ना GRS में। बट जो मेरे कस्टमर्स है ना, जो मेरे यूजर्स है, जो पहले यहां से डेटा एक्सेस कर रहे थे यहां से, उनको अब कहाँ से करना पड़ेगा? यहां से। बट वो डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, दे विल नॉट बी एबल टू एक्सेस माई डेटा डायरेक्टली। उससे पहले फेल ओवर करना पड़ेगा। फेल ओवर, फेल ओवर प्रोसेस होगा कि अगर यूके साउथ का ये स्टोरेज डाउन होता है, पूरा पूरा डेटा सेंटर इंपैक्ट होता है, तो मुझे सेकेंडरी में फेल ओवर करना पड़ेगा, यानी रिडंडेंसी, फेल ओवर, फेल ओवर स्विच करना।
ट्रैफिक उठा के स्विच करना पड़ेगा, और जब मैं फेल ओवर करूंगा तो मेरा ये जो सेकेंडरी रीजन है ना, तब ये प्राइमरी बन जाएगा। तब ये प्राइमरी बन जाएगा। और फेल ओवर मैं मैनुअली भी कर सकता हूँ, मतलब मैं पोर्टल पे जाके खुद कर सकता हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। सो आई कैन मैनुअली डू द फेल ओवर, या फिर मैं माइक्रोसॉफ्ट को टिकट रेस करके उनसे भी करवा सकता हूँ। तो जब फेल ओवर होगा तो सेकेंडरी रीजन प्राइमरी बन जाएगा, और उसकी जो डीएनएस पॉइंटिंग थी, जो प्राइमरी रीजन की जो डीएनएस पॉइंटिंग थी, वो अब सेकेंडरी में कन्वर्ट हो जाएगी। तब इन कस्टमर्स को यहाँ से डेटा मिलने लग जाएगा। दे कैन अपलोड द डेटा, दे कैन मॉडिफाई द डेटा, दे कैन यूज इट। तो इस तरीके से काम करेगा। और सेम यही कॉन्सेप्ट जो है आपके इसमें भी है, GZRS में, कि अगर आपका प्राइमरी रीजन डाउन होता है तो आपको फेल ओवर करके सेकेंडरी वाले को प्राइमरी बनाना पड़ेगा। डीएनएस पॉइंटिंग माइक्रोसॉफ्ट उसकी प्राइमरी में कन्वर्ट करेगा, तब जाके आपके कस्टमर्स को डेटा अवेलेबल होगा। सो वी हैव द कॉपीज, बट इट डजेंट मीन कि जैसे ही प्राइमरी डाउन हुआ तो सेकेंडरी से हमें डेटा मिलने लग जाएगा। ऐसा नहीं है, हमें फेल ओवर करना पड़ेगा, चाहे पोर्टल से करो चाहे माइक्रोसॉफ्ट से करवाओ, बट करना पड़ेगा। बट मैं चाहता हूं कि अगर मेरा प्राइमरी रीजन डाउन हुआ, मैं चाहता हूं कि अगर मेरा प्राइमरी रीजन डाउन हुआ तो सेकेंडरी रीजन से एटलीस्ट मेरे कस्टमर को डेटा तो मिलना चाहिए। देखो, मैं अपलोड नहीं करने की बात कर रहा, यानी राइट, मैं राइट नहीं करना चाह रहा। राइट तो एक सेकेंडरी मैटर है, मुझे डेटा तो चाहिए, डेटा एक्सेस तो हो, रीड रीड करना है मुझे, रीड। जो डेटा है एटलीस्ट वो तो मेरे कंट्रोल में आए, मैं उसमें उसमें से कुछ यूज तो करना चाहता हूँ। मॉडिफिकेशन इज अ डिफरेंट थिंग। मुझे अगर फुल एक्सेस चाहिए कि हाँ भाई डेटा अपलोड भी हो जाए, मॉडिफाई भी कर सकूं, रीड भी कर सकूं, तब तो मैं फेल ओवर करूंगा। एक एक रीजन डाउन हुआ, देन आई हैव टू फेल ओवर एंड सेकेंडरी वाले को प्राइमरी बनाना पड़ेगा। बट अगर मेरी रिक्वायरमेंट है कि सडन स्पाइक होता है और प्राइमरी रीजन डाउन होता है, यानी फॉर एग्जांपल यूके साउथ डाउन होता है सडन स्पाइक से, तो यूके वेस्ट में जो मेरा डेटा है, मेरे कस्टमर्स को चाहिए तो ऑन द स्पॉट अवेलेबल तो होना चाहिए, रीड तो कर सके वो, कम से कम रीड होना चाहिए, रीड। राइट वाइट के लिए तो फेल ओवर ही होगा, फेल ओवर में फिर टाइम भी लगता है, बहुत ज्यादा नहीं लगता बट टाइम तो लगता है। तो उस कंडीशन में डाउन टाइम तो नहीं होना चाहिए, यूजर्स को डेटा तो मिले, क्योंकि डेटा कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहिए मुझे, रीड चाहिए, मेरे पास रीड एक्सेस होना चाहिए। सो इन दैट कंडीशन आपका GRS और GZRS एक और एक्सटेंडेड फीचर आपको देता है, विच इज व्हाट, विच इज RA, मतलब इनके आगे RA लगा दो, RA, RAGRS एंड RAGZRS। रीड एक्सेस जियो जोन रिडंडेंट स्टोरेज, और रीड एक्सेस जियो रिडंडेंट स्टोरेज, मतलब रीड एक्सेस, इनके आगे रीड एक्सेस लग गया। ये, अब रीड एक्सेस लगने से क्या होगा, देखो, रीड एक्सेस लगने से ये होगा कि अगर ये रीजन डाउन होता है तो कस्टमर्स जो है ना, वो बिना फेल ओवर के भी यहां से एटलीस्ट डेटा रीड कर पाएंगे, उनके पास रीड का एक्सेस होगा। रीड रीड एक्सेस है, तो फेल ओवर करोगे तब तो फुल एक्सेस हो जाएगा, ये सेकेंडरी रीजन प्राइमरी ही में कन्वर्ट हो जाएगा तब तो। बट जब तक फेल ओवर नहीं होता है, एटलीस्ट उनके पास डेटा एक्सेसिबिलिटी लूज नहीं होगी, डेटा तो एक्सेस कर पाएंगे, रीड तो कर पाएंगे। दैट इज रीड एक्सेस जियो जोन रिडंडेंट स्टोरेज। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी, अगर आप GRS यूज कर रहे थे तो GRS में अगर आप RAGRS यूज करते हो, तो अगर ये प्राइमरी रीजन डाउन हुआ तो उस केस में आपके कस्टमर्स डेटा यहाँ से रीड कर पाएंगे, उसके लिए आपको फेल ओवर परफॉर्म करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। दैट इज RAGRS। तो ये चार ऑप्शंस थे हमारे पास मेन, LRS, GRS एंड GZRS, प्लस और भी दो ऑप्शन, RAGRS एंड RAGZRS। So in total we have 6 replication, redundancy और failover options for the Azure storage account, जो आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। दिस वॉज द थ्योरी। बाकी आप इसको और पढ़ सकते हो अगर और ज्यादा पढ़ना है तो। मैंने बहुत सारे जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें थी सब बता दी। एक और चीज का ध्यान रखना, सारे ऑप्शन सारे रीजन्स में अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए तो आप ये चार्ट रेफर कर सकते हो, यहाँ लिखा हुआ है कहाँ पे क्या अवेलेबल नहीं है, ये देखो किस चीज के लिए क्या अवेलेबल नहीं है, यू कैन रेफर दिस। बाकी ऐसे कोई पूछता भी नहीं है इंटरव्यू में कि हाँ किस रीजन में क्या अवेलेबल नहीं है, कोई पूछता है तो ये लिंक ओपन करके उसको समझा देना स्क्रीन शेयर करके। यू मस्ट बी कॉन्फिडेंट इनफ टू एक्सप्लेन द थिंग्स। याद कैसे करोगे, मेन मेन चीजें पता होनी चाहिए, पॉइंट्स, आर्किटेक्चरल लेवल के पॉइंट्स, डिजाइन लेवल के पॉइंट्स। अब मैं इसको बैठ के रट्टे थोड़ी ना मारते रहूंगा, यू कैन नॉट डू दैट।
सो नाउ लेट्स मूव टू द प्रैक्टिकल। इसका प्रैक्टिकल समझते हैं। देखो, थ्योरी बड़ी कॉम्प्लेक्स थी, प्रैक्टिकली सुपर इजी, बहुत ही इजी सा है। इवन उसकी तरह भी नहीं है जैसे हमारा अवेलेबिलिटी सेट था वीएम में, उससे भी इजी है। वहां पे एजेड इजी था, वीएमएस थोड़ा कॉम्प्लेक्स था। यहाँ पे तो सब कुछ ही इजी है। पहले मैं एक स्टोरेज बना लेता हूँ। स्टोरेज बनाने से पहले लेट मी ऑल्सो टेल यू, जो पेयर्ड रीजन्स होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था पहले की वीडियोस में जब हम हाई अवेलेबिलिटी फॉर वीएम्स पढ़ रहे थे। सो अगर आप देखना चाहते हो एज्योर के पेयर्ड रीजन्स मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड रीजन्स, तो आप ऑफिशियल लिंक में जाओ। मैं एक बार लिस्ट लिख देता हूँ क्योंकि कुछ और खुल जाएगा। यही है, इसमें देखते हैं। यहाँ पे देखो सब मिलेगा। ये देखो, ऑस्ट्रेलिया सेंट्रल के अंदर आपके दो रीजन है। देखो, ऑस्ट्रेलिया सेंट्रल कनेक्टेड है ऑस्ट्रेलिया सेंट्रल 2 से, तो फिजिकल लोकेशन कैनबेरा में डेटा सेंटर है। और ये उसका दूसरा नेम है, प्रोग्रामेटिक नेम। और ऑस्ट्रेलिया सेंट्रल 2 में जो डेटा सेंटर है दैट इज ऑल्सो इन द कैनबेरा। जैसे मैंने आपको समझाया था ये सब कुछ पहले। सी, ईस्ट यूएस जो है वो कनेक्टेड है वेस्ट यूएस से, तो ईस्ट यूएस में वर्जीनिया में डेटा सेंटर है। सी, एंड ईस्ट यूएस जो दूसरा है दैट इज कनेक्टेड विद द सेंट्रल यूएस। तो ये सब आप देख लेना दोबारा से, दैट इज द पेयर्ड रीजन कॉन्सेप्ट कि डायरेक्टली कौन सा रीजन किसके साथ पेयर्ड है, मतलब कनेक्टेड है। जैसे यूके साउथ की हम बात कर रहे हैं, मैं बार बार यूके साउथ का एग्जांपल ले रहा हूँ। तो यूके साउथ डायरेक्टली कनेक्टेड है यूके वेस्ट से, तो यूके साउथ में लंदन में डेटा सेंटर है। और यूके वेस्ट में कहाँ पे डेटा सेंटर है? कार्डिफ, कार्डिफ लोकेशन में। तो ये पढ़ लेना, मतलब पढ़ना क्या है, इसको रेफर कर लेना, इसको याद करने वाला कुछ नहीं है ये, कहीं याद करने बैठ जाओ। नाउ लेट्स सी द प्रैक्टिकल। आई विल क्रिएट वन स्टोरेज अकाउंट। मैं एक स्टोरेज अकाउंट बनाऊंगा और उसमें कन्वर्जन समझते हैं। सो क्लिक ऑन क्रिएट, बनाना आता ही है। वी विल जस्ट फॉलो द नेक्स्ट प्रोसीजर। I will create a new resource group. Give a unique name. So I will give pop star data storage 001. It should be available. Available है। रीजन ले लो कोई भी। I will take UK South. प्रेफर्ड स्टोरेज मैंने आपको समझाया था, नहीं लेना तो लीव इट। परफॉर्मेंस में स्टैंडर्ड प्रीमियम, ये भी आपको पता है, ये है देखो रिडंडेंसी। आप यहाँ से ले सकते हो LRS GRS ZRS GZRS, या बाद में भी आप इसको चेंज कर सकते हो। फॉर नाउ आई विल जस्ट चूज द LRS। और एक चीज और देख लो, ये एक नया ऑप्शन आया है, ये वाला जियो प्रायोरिटी, एक नया ऑप्शन है। यू कैन रीड अबाउट इट। बाकी इस पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा। ये आर्किटेक्चरल लेवल का टॉपिक है, तो नया नया है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। फॉर नाउ आई विल चूज द LRS। हमने सबकी थ्योरी समझ ली है, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो इनके बारे में। आई विल चूज द LRS फॉर नाउ। क्लिक ऑन नेक्स्ट। ये सब आपको पता ही है, हम सब कर चुके हैं। नेक्स्ट, ये सब हम कर चुके हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट। ये सॉफ्ट डिलीशन वगैरह, रिकवरी, आई थिंक रिकवरी हमारी बच रही है, तो रिकवरी आई विल टेक इन द नेक्स्ट सेशन। नेक्स्ट एंड रिव्यू प्लस क्रिएट। देन क्रिएट। लेट्स वेट। तो डिप्लॉयमेंट इज डन। नाउ गो टू द स्टोरेज अकाउंट। ये मेरा स्टोरेज है ये। अब इसमें जो हाई अवेलेबिलिटी ऑप्शन मैंने चूज किया है, यानी रेप्लिकेशन, इट इज LRS। आपको थ्योरी पता ही है। LRS जो है आपके, इट मीन्स जो भी डेटा मैं अपलोड करूंगा, देखो मुझे 3 स्टोरेज नहीं दिख रहे हैं। इट विल नॉट शो मी 3 स्टोरेज। एक स्टोरेज एक ही दिखेगा, बैकएंड में 3 बने हुए हैं, 3 अलग अलग रैक्स में। तो जो भी डेटा मैं इसमें अपलोड करूंगा उसकी 3 कॉपीज बन रही होगी इनटू 3 डिफरेंट रैक्स। माइक्रोसॉफ्ट के हिसाब से, माइक्रोसॉफ्ट यही बोलता है, वो आपको दिखेगा भी नहीं, ध्यान रखना कहीं प्रूफ मांगने लग जाओ। तो 3 कॉपीज आर गेटिंग क्रिएटेड इनके हिसाब से। अभी मेरा LRS है, तो कल को
अगर मेरे को ZRS में मूव करना पड़ा, इफ आई नीड द ZRS जोन रिडंडेंट स्टोरेज, कि मेरे को जो है 3 अलग अलग फिजिकल डेटा सेंटर्स में मेरे डेटा की कॉपी चाहिए, इफ आई नीड दिस वन, तो इजी सा है, रेप्लिकेशन कभी भी चेंज कर सकते हो आप। उसके लिए आपको यू नीड टू स्क्रॉल डाउन एंड यू नीड टू गो टू द ऑप्शन ऑफ रेप्लिकेशन यानी रिडंडेंसी। रिडंडेंसी में जाओ। करेंटली अभी LRS है, तो और यूके साउथ आपका स्टोरेज लोकेशन है, हमने यूके साउथ में बनाया है, तो ये मेरा लोकेशन है। मुझे इसको बनाना है ZRS, तो आई कैन चूज ZRS। और देखो ये GZRS और GZRS इस रीजन में अवेलेबल नहीं है। तो मैंने बताया सारे रीजन में सारे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, तो वो भी आप लिस्ट में चेक कर सकते हो, उस लिस्ट में इस डॉक्यूमेंट में आपको सब मिलेगा। तो अभी हम LRS पे थे, आई वॉन्ट टू गो विद ZRS, सो आई विल चूज द ZRS एंड आई विल सेव। मुझे अगर GRS पे जाना होता तो मैं GRS चूज करता। GRS का कॉन्सेप्ट आपको पता ही है, वो एक सेकेंडरी रीजन में भी डेटा कॉपी कर देगा। मतलब प्राइमरी रीजन में 3 कॉपी इन द सेम डेटा सेंटर, और सेकेंडरी रीजन में 3 कॉपी इनटू द डिफरेंट डेटा सेंटर। तो ये देखो, अगर मैं GRS चूज करता हूँ और अगर सपोज मैंने सेव कर दिया, तो अगर डिपेंडिंग अपॉन द डेटा, आपके में डेटा कितना है स्टोरेज में, उसके हिसाब से यहाँ टाइम लगता है। मेरे में डेटा था ही नहीं, इसलिए ऑन द स्पॉट हो गया। अगर बहुत सारा डेटा रखा हुआ है ना आपने, इट कैन टेक टाइम, और टाइम की कोई SLA नहीं है। इट कैन टेक 10 मिनट्स, इट कैन टेक 30 मिनट्स। तो देखो इसने अब बना दी ना। एक यूके साउथ में हमारी प्राइमरी कॉपी चल रही है, और यूके वेस्ट में भी इसने हमारा स्टोरेज बनाया। अब यूके वेस्ट में 3 कॉपी चल रही होगी सेम डेटा सेंटर में एज पर माइक्रोसॉफ्ट, और यूके साउथ में जो मेरा प्राइमरी लोकेशन है वहां पे भी 3 कॉपी चल रही है इन द सेम डेटा सेंटर, बट डिफरेंट डिफरेंट रैक्स। तो बन गए दो, और देखो यहाँ पे 2 डेटा सेंटर भी दिखा रहा है पेयर्ड। मैंने कोई सेकेंडरी रीजन चूज नहीं किया, आप चूज नहीं कर सकते कि आपको ईस्ट यूएस में कॉपी करानी है, नहीं। यूके साउथ का जो भी पेयर्ड रीजन था, इसने ऑटोमेटिकली वहां पे मेरे डेटा की कॉपी करा दी, यानी यूके वेस्ट में। तो पेयर्ड रीजन में करता है हमेशा। और देखो कह रहा है आप फेल ओवर नहीं कर सकते अभी, क्योंकि अभी डेटा सिंक हो रहा है। मैंने बताया ना एसिंक होता है, एसिंक्रोनस, कि प्राइमरी का डेटा पहले सेकेंडरी में सिंक होगा। डेटा तो है नहीं वैसे, बट कुछ टाइम बाद ये यहाँ पे ऑप्शन दे देगा। तो जब डेटा सिंक हो जाएगा तब आप फेल ओवर कर सकते हो। सी, सिंक्रोनाइजेशन जब कंप्लीट होगा तब फिर क्या होगा, फिर ये वाला ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। अगर मेरा प्राइमरी स्टोरेज डाउन होता है तो मुझे यहाँ पे एरर दिखा देगा, स्टेटस अनअवेलेबल, फिर एरर दिखाने लग जाएगा। फिर एरर जब दिखाएगा, हमें पता लग गया, अलर्ट आ गया, तो आप जाके प्रिपेयर फॉर फेल ओवर पे क्लिक करो, और फेल ओवर करके ये वाला जो रीजन है, फिर ये फेल ओवर के बाद ये प्राइमरी बन जाएगा, और ये वाला सेकेंडरी हो जाएगा। फिर आप बाद में दोबारा फेल ओवर कर सकते हो, आप इसको फिर से चेंज कर सकते हो वंस इट इज फिक्स्ड। तो ये ऑप्शन होता है फेल ओवर का। मुझे वापस से चेंज करना है, सपोज आई वांट टू मूव टू ZRS, तो ZRS में चले जाओ आप। ये देखो RAGRS का भी ऑप्शन आ गया अब, क्योंकि RAGRS में जाने से पहले आपको GRS में जाना पड़ता, देन यू कैन गो टू RAGRS। तो RAGRS में भी जाओगे, वही सेम ऑप्शन है, 2 ही स्टोरेज है थ्योरी के हिसाब से। उसमें 3 3 कॉपीज चल रही होगी, बट वो रीड एक्सेस अवेलेबल होगा। अगर आप फेल ओवर नहीं भी करते हो, स्टिल कस्टमर्स विल बी एबल टू रीड द डेटा, एक्सेस द डेटा। अगर मैं ZRS में जाता हूँ फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे देखो ZRS का ऑप्शन हाईलाइट नहीं है, क्योंकि हम हायर ऑप्शन पे बैठे हैं, सो वी कैन नॉट मूव टू द लोअर वन। LRS में जा सकते हो, बट उससे नीचे वाले में नहीं जाने दे रहा। तो ये डिपेंडेंसीज हो जाती है, जो भी अवेलेबल है उस पर्टिकुलर रीजन के हिसाब से वही आप देख पाओगे। जैसे मैं GZRS में जा सकता हूँ, GZRS मैंने आपको समझा ही दिया। तो यहाँ पे अगर मैं सेव करता हूँ, तो ये देखो बता रहा है कि कन्वर्जन स्टॉप नहीं कर सकते आप एक बार अगर आप चेंजिंग लगा देते हो, क्योंकि आप कन्वर्जन चेंज कर रहे हो। इफ यू आर चेंजिंग द रिडंडेंसी ऑप्शन, तो एक बार स्टार्ट कर दिया तो चेंज नहीं होगा। फेल ओवर इनिशिएट नहीं कर सकते जब तक कि ये चल रहा है। मान लो जब तक ये कन्वर्जन चल रहा है, आप सोच रहे हो कि फेल ओवर कर लूँ, इट इज नॉट पॉसिबल। डेटा एक्सेसिबल होगा जब तक ये प्रोसेस चल रहा है, ये बैकएंड में चलते रहेगा, फेल ओवर चलते रहेगा। बट अभी जो है करंटली, अभी जो करंटली है, उसके हिसाब से जब तक ये कन्वर्ट नहीं हो जाता, आपका डेटा कस्टमर एक्सेस करते रहेंगे। डेटा एक्सेस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और डेटा किसी भी तरीके का लॉस भी नहीं होगा। करना है, यस करना है। तो कितना टाइम लगेगा उसका भी ऐसे लेनी है, डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है ये भी, कितना टाइम लग सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द डेटा, डिपेंडिंग अपॉन द लेटेंसी, डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड। हमारे में तो डेटा है नहीं, बट फिर भी रिडंडेंसी में टाइम लगता है, क्योंकि आप पूरा पूरा फेल ओवर इनिशिएशन चेंज कर रहे हो। तो जब ये हो जाएगा, देन इट विल शो यू हियर जो भी आपने चूज किया GZRS, तो GZRS दिखाएगा। अभी देखो स्टेटस क्या दिखा रहा है,
सबमिटेड फॉर कन्वर्शन। जब पूरा हो जाएगा तो यहाँ पे दिखा देगा सक्सीडेड, और फिर यहाँ पे भी दिखने लग जाएगा इन दिस एरिया ऑल्सो। ये अभी GRS था, जब ये हो जाएगा तो GZRS दिखाने लग जाएगा। और जब जब स्टेटस ट्रैक करना हो तो आप यहाँ पे जा सकते हो, यू कैन गो हेयर एंड इन द रिडंडेंसी यू कैन सी कि अभी चल रहा है, अभी चल रहा है। बाकी ये प्रायोरिटी रेप्लिकेशन आया हुआ है, एक नया फीचर जो मैं बता रहा था, 15 मिनट्स वाला, दैट इज, इसके लिए मैं बाद में कभी एक वीडियो बनाऊंगा। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स, इस तरीके से ये काम करता है। तो सिंक्रोनस रेप्लिकेशन, असिंक्रोनस रेप्लिकेशन, यू शुड नो अबाउट दिस। एक और इम्पोर्टेंट चीज बताता हूँ। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब मैंने सपोज, मान लो मैंने GRS चूज किया या GZRS चूज किया, कुछ भी चूज किया इन दोनों में से, मतलब सेकेंडरी रीजन का कोई भी रेप्लिकेशन अगर मैंने चूज किया, मैंने आपको समझाया कि सेम डेटा सेंटर में सेम रीजन में, जैसे यूके साउथ में अगर ये चल रहा है, तो जो 3 कॉपी होगी वो तो लाइव होगी, वो सिंक्रोनस होगी, मतलब जो भी यहाँ पे है सेम कॉपी होती रहेगी, जो भी अपडेट होगा सेम मॉडिफाई होते रहेगा। बट इस रीजन से, जो इसका पेयर्ड रीजन है यूके वेस्ट, उसमें जो डेटा कॉपी होगा दैट विल बी एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस मतलब एक टाइम के बाद, एज लाइव नहीं होगा। मतलब सारा डेटा यहाँ पे आ गया, फिर एक टाइम हो गया कि हाँ शाम को 6 बजे या रात को 12 बजे हम लोग जो है सारा डेटा कॉपी कर देंगे, यही होगा। सपोज इनका टैट मान लो 30 मिनट्स का है, फॉर एग्जाम्पल इनका 30 मिनट्स का SLA है कि हर 30 मिनट्स के बाद हम एक स्कैन चलाएंगे और जो भी डेटा यहाँ पे अवेलेबल है इस स्टोरेज में उसको यहाँ पे कॉपी कर देंगे, सपोज 30 मिनट्स का। तो मान लो अभी, अभी फॉर एग्जाम्पल मेरे स्टोरेज में यहाँ पे इसमें डेटा है अराउंड 10 GB। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ध्यान से समझना। 10 GB का डेटा है मेरे स्टोरेज में, और 30 मिनट्स का जो फर्स्ट स्कैन चला था उसमें वो डेटा सारा यहाँ पे कॉपी हो चुका, यहाँ पे कॉपी हो गया है, मेरे पास कॉपी है। अब फिर से 30 मिनट्स के बाद स्कैन चलेगा, 30 मिनट्स के बाद। बट इसी दौरान, इसी बीच मैंने 2 GB का और डेटा ऐड कर दिया। मान लो ये जो पहला स्कैन हुआ था इट वाज ऑन 10:30 AM पे ये स्कैन हुआ था, तो नेक्स्ट स्कैन कब चलेगा, 11 बजे चलेगा। बट 10:40 पे मैंने इसमें 2 GB और डेटा ऐड किया है इस स्टोरेज पे। लेकिन वो 2 GB एक्स्ट्रा डेटा जब आया तो टोटल कितना हो गया, 12 GB। 2 GB का इंक्रीमेंट है। तो ये जो 2 GB का डेटा है ये कब यहाँ पे कॉपी होगा, कब ये आएगा यूके वेस्ट में, 11 बजे। क्योंकि 11 बजे एक नेक्स्ट स्कैन चलेगा तब वो वहां पे कॉपी करेगा, विच इज एसिंक्रोनस स्कैन। तो उस केस में अगर 10:40 पे मैंने डेटा अपलोड किया है, 11 बजे स्कैन चलने वाला है, बट 10:50 पे क्या हुआ, 10:50 पे ये डेटा सेंटर फेल हो गया, कुछ भी हो सकता है, अनप्लान्ड आउटेज। सो एट 10:50 दिस डेटा सेंटर गॉट कोलैप्स्ड, और ये स्टोरेज अब अवेलेबल नहीं है। तो 11 बजे तो स्कैन चला ही नहीं, क्योंकि 10:50 पे स्टोरेज बंद हो गया है, इश्यू आ गए हैं, और 11 बजे तक वो फिक्स भी नहीं हुआ। फिक्स नहीं हुआ तो स्कैन 11 बजे चला ही नहीं। और हमें क्या करना है, फेल ओवर करना है अब, क्योंकि हम उसको ठीक करने में लगे हुए हैं बट नहीं हो रहा, और माइक्रोसॉफ्ट बैकएंड से करेगा उसको, बिकॉज दैट इज ए हार्डवेयर लेवल फेलियर। हमारे एंड पे तो कुछ ज्यादा हम कर नहीं सकते, वी हैव रेज्ड अ टिकट टू द माइक्रोसॉफ्ट। तो वो लगे हुए हैं, एंड द ओनली थिंग विच आई कैन डू इज फेल ओवर। हम फेल ओवर कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो डेटा चाहिए ना, द डेटा मस्ट बी एक्सेसिबल टू द कस्टमर्स। तो हम फेल ओवर कर सकते हैं। जब मैं फेल ओवर करूंगा, सो दिस स्टोरेज इन द सेकेंडरी डेटा सेंटर विल बिकम द प्राइमरी, ये प्राइमरी बनेगा। बट जब ये प्राइमरी बनेगा तो इसमें जो ये एक्स्ट्रा 2 GB का डेटा था क्या वो अवेलेबल होगा, नहीं होगा। क्योंकि पहले जब 10 GB का डेटा इसमें कॉपी हुआ था उसके 30 मिनट्स के बाद स्कैन चलने वाला था, विच इज 11 AM। 2 GB का डेटा एक्स्ट्रा ऐड हुआ था 10:40 पे, 10:50 पे प्राइमरी स्टोरेज डाउन हो गया किसी रीजन से। तो 11 बजे का स्कैन चला ही नहीं है, और नहीं चला तो वो एक्स्ट्रा 2 GB का जो डेटा है यहाँ पे मूव नहीं हुआ। और अगर मैं फेल ओवर इनिशिएट करता हूं तो मेरे को सिर्फ 10 GB डेटा ही मिलेगा। इट मीन्स व्हाट इज द लॉस, द लॉस इज 2 GB। 2 GB का लॉस तो मेरे को झेलना पड़ा ना, अगर ये स्टोरेज वापस नहीं आता है, वैसे तो वापस आएगा, ठीक होगा, बट इफ इट डज नॉट बिकम अवेलेबल तो मेरा 2 GB का डेटा लॉस हो गया। दिस पॉइंट इज कॉल्ड RPO, रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव। RPO, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इन द बैकअप।
रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव, कि एक कंपनी अगर कुछ डाउन होता है, चाहे वो ऐसा नहीं है क्लाउड के लिए है, इट इट इज एप्लीकेबल इन द ऑन प्रेमाइसिस ऑल्सो। अगर कुछ भी डाउन होता है किसी कंपनी में, चाहे वो ऑन प्रेमाइसिस डेटा सेंटर में हो, चाहे वो क्लाउड डेटा सेंटर में हो, डाउन होने के बाद जब वो फेल ओवर इनिशिएट करती है, तो एक कंपनी कितना लॉस हैंडल कर सकती है, दैट इज आरपीओ, रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव। जैसे यहाँ पे 2 GB का डेटा मेरा यहाँ पे रेप्लिकेट नहीं हो पाया क्योंकि स्कैन चला ही नहीं। तो दिस 2 GB इज माई आरपीओ, रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव, ये मेरा लॉस है। तो कितना मेरा कंपनी लॉस हैंडल कर सकती है, दैट इज आरपीओ, रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव। हियर इट इज 2 GB। तो जो लास्ट सिंक हुआ था और जो लेटेस्ट सिंक होने वाला है जो कि नहीं हो पाया, उसका जो डिफरेंस है दैट इज आरपीओ, रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। So the interval between the most recent writes to the primary region and the last write to the secondary region is known as RPO, Recovery Point Objective. तो ये भी कंपनी को प्लान करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द बिजनेस रिक्वायरमेंट कि वो कितना लॉस झेल सकती है। Architect will plan the RPO. Accordingly, the replications will be set up. और टाइम जो है, वट एवर इज द राइट टाइमिंग, इट इज डिसाइडेड बाय द माइक्रोसॉफ्ट कि किस टाइम पे राइट होगा, किस टाइम पे एसिंक्रोनस रेप्लिकेशन चलेगा। बट कितना लॉस हम हैंडल कर सकते हैं, अगेन वी हैव टू प्लान इट अकॉर्डिंगली। So this was again one of the concept which you should know. अभी भी देखो ये कन्वर्जन चल रहा है, so it can take time, it will take a lot of time. There is no SLA कब होगा कैसे होगा, but you know the concept कि कैसे क्या होता है. It was very easy practical. Concept was very complex, but practical was super easy. And we can now wrap up this session. ये topic हमारा खत्म होता है. We will leave it as it is. So this redundancy option is now done. In case you want to understand about the virtual machine redundancies in Azure, then you can refer the previous sessions recordings as well, which is available on the channel. Now, we can wrap up this call. So thank you very much for your timing. See you in the next session. And in case you are liking this video, then you can subscribe to the channel and hit the notification bell icon. So thank you very much. Have a good day. Bye.